हेलो स्टूडेंट, अभी देखा आपने इसके पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो एपी के बारे में बताया था कि एपी क्या है और nth टर्म ऑफ एपी आप कैसे निकालेंगे। nth टर्म निकालने के बाद आप लास्ट से nth टर्म कैसे निकालेंगे, शुरुआत से nth टर्म कैसे निकालेंगे, डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम उस एपी का सम बताएंगे। उस एपी को हम अगर उस लिस्ट को सम करते हैं तो क्या आता है, तो आइए डिस्कस करते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट वी राइट ऑल द टर्म्स ऑफ एपी। ए इज द फर्स्ट टर्म, you know very well, and the second term we will obtain by adding d. What we will add? D. So a plus d, a plus 2d, and last term that is a first term, a plus d second term, a plus 2d third term, and the last term. So we have to find the sum of all these terms, and that is denoted by Sn, sum of n term. You can write a plus d, a plus 2d, plus the last term n. First term a, second term a plus d, a plus 2d, and adding all the term we get last term. Now if we start AP from the last and we add AP from last also, the same will be, we will get same. If you add from 1 to 10 or 10 to 1, you will get the same value. 1 plus 2 and 2 plus 1 same value. So either you add from A to L or L to A, you will get Sn. Again, if you write equation here, again add from starting last, you will get same. So again add starting from last. Starting from last to first. So last to first, yes, and that is also some same L plus L minus D. You can subtracting, by subtracting D, you will get A. L plus L minus D plus L minus 2D plus, and you will get the first term A. If you start from first term, adding D, you will get the last term. If you start from last term and subtracting D, you will get A, the first term. Now you can add these two terms. Add first and second. There are two equations. Both add by adding either from last to first or from first to last, you will get the same value. So same value Sn, here 2Sn. You can see here A plus L, D cancel, A plus L, plus A plus L, same here, A plus L, A plus L. Now D or D cancel, A plus L, 2D cancel, and this is the last one, A plus L. How many terms are there? First term, second term, third term, and the last term, nth term. So by adding all the term, you will get A plus L, A plus L, A plus L, A plus L, every case. How much time? n times. तो अगर आप n टाइम्स किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप n से मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे 2 को 4 बार ऐड करना है तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करोगे तो 2 2 4 6 8, तो सिंपली 2 में 4 से मल्टीप्लाई करो तब भी 8 आ जाता है। तो अगर आपको n टाइम कोई ऐड करना हो तो उसे n से मल्टीप्लाई कर देते, तो यू विल गेट 2SN 8 + L × n. This is n times. This is how much time? N times. So n into a plus L. So this implies Sn is equal to n by 2 a plus L. This is the sum of n term of an AP. You know the n के बारे में आपको पता है, पहले ही हमने बता रखा है। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए के बारे में आपको पता है, क्या है? फर्स्ट टर्म। यल के बारे में पता है, लास्ट टर्म। दिस इज आल्सो नोन एज nth टर्म ऑफ NAP. यल इज द लास्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ AP. यू कैन से एनीवन. Sn, what is new term? Sn, sum of n terms of NAP. n टर्म्स का ये सम है। और अभी आपको यल के बारे में आप पहले से पता है, यल दैट इज स्टैंड फॉर an. तो यल इज इक्वल टू an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ यल इन थर्ड वन, you will get the next equation. So if you will put the value of n in third one, you will get this one. Look here, what you will get after putting the value of L. L की वैल्यू आप पुट करोगे a plus n minus 1 into d, तो आपको क्या मिल जाएगा? Yes, n by 2 a plus n minus 1 into d. So finally you can write here Sn is equal to n by 2 2a, a plus a, 2a plus n minus 1 into d. This is the second formula for nth term of an AP. I hope it is clear to everyone. First आपने क्या किया? पहले आपने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP लिखा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा एंड द लास्ट टर्म, एंड दैट यू गेट Sn, सम ऑफ n टर्म्स. अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, अगेन ऐड किया आपने, कहां से? लास्ट से स्टार्ट किया और फर्स्ट तक आया. तो यल माइनस डी, लास्ट से फर्स्ट आने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. यल माइनस डी आपने लिखा, यल माइनस डी, यल माइनस 2d, और कहां पहुंच जाएंगे? यल से स्टार्ट करेंगे ए पे. इन दोनों को ऐड कर लिया आपने, फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको ये मिल गया a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल. हाउ मच टाइम? n टाइम्स. उसके बाद आपने यहां से a प्लस एल n टाइम्स मिला तो Sn मल्टीप्लाई कर दिया, n by 2 a प्लस एल आ गया. और l की वैल्यू आपको पता है, ये nth टर्म ऑफ AP है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑलरेडी डिक्टेटेड, ऑलरेडी डिस्कस इन nth टर्म ऑफ AP. और इसी an की वैल्यू आपने यहाँ थर्ड में पुट करके ये आप नेक्स्ट फॉर्म ऑफ AP, Sn सम ऑफ n टर्म ऑफ AP मिल गया. नेक्स्ट फॉर्म Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP. तो आप इस तरह कह सकते हैं, देयर विल बी टू फॉर्म. इफ द लास्ट टर्म विल बी गिवन, देन यू कैन अप्लाई Sn इज इक्वल टू n by 2a plus n. तो देखिए वो दो फॉर्म कौन कौन से हैं, इसको हम लिख लेते हैं. Sn, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP. तो पहला Sn इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? n by 2 a plus n. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ये नंबर ऑफ टर्म्स. A स्टैंड फॉर
फर्स्ट टर्म L, that is AN, that stand from last term ब्रैकेट में NF टर्म, और इस AL या AN को हम लिखते हैं A plus N minus 1 into D. So in this way the second form will be, इस तरह आप सेकेंड फॉर्म क्या पाओगे, n by 2 a plus n minus 1 into d, that is n by 2 2a plus n minus 1 into d. So there will be two forms. One formula, this one, the first form. If the last term is given, you will apply the first one, and if the first term complete AP will be given, then you will apply this one. So in this way you can find the nth term of n. Now look here, अभी आपने सम ऑफ n टर्म ऑफ AP आपने पढ़ लिया. अब हम थोड़ा उसके स्पेशल केस पढ़ते हैं. AP कुछ इस तरह दिया है, इवेंट टर्म सारे दिए हैं, n टर्म्स हैं, लेकिन वो सारे इवेंट नंबर है 2 4 6 8. So by adding 2 you can get 2 plus 2 plus 2 plus 2 again plus 2, you will get that all the terms. So what will be nth sum of n term of all even, if the terms are even, all even terms का सम क्या होगा? तो देखिए यहाँ a कितना है, 2. सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. d क्या है, 4 minus 2, this is also 2. D भी 2 है, तो आप Sn निकालेंगे. तो n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of n term of an AP. Now n is already n, so Sn is equal to n by 2 into 2 plus n minus 1 into 2. What you will get? Look here. Sn is equal to n by 2 4 plus n minus 2. So n plus 2 by 2, that is sum of all even terms. सम ऑफ ऑल इवेंट टर्म्स क्या हो जाएगा, n plus 2 by 2. अगर हमने n टर्म्स लिए, अगर 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 इवेंट टर्म अगर हम कहें, सम ऑफ फर्स्ट n इवेंट टर्म है, अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 10 इवेंट टर्म कहें तो यहाँ n इज इक्वल टू 10 दे दें, 10 plus 2 upon 2. अगर सम ऑफ 20 इवेंट टर्म कहें, सम ऑफ फर्स्ट 20 इवेंट टर्म, तो 20 into 20 plus 2 by 2. तो ये इवेंट टर्म की बात हो गई. अगर हम सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हम निकालें तो क्या होगा, एंड n टर्म्स में, एंड सम ऑफ ऑल फर्स्ट n और टर्म निकालें तो क्या होगा, 1 by 1 we can discuss. Look here.
सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर इन AP 1 2 3 n टर्म्स। इसका सम हम करके देखते हैं। तो A is 1 here, D is 1, so you can find Sn is equal to n by 2 2A plus n minus 1 into D. So look here, n by 2 2 into 1 plus n minus 1 into 1, n by 2 2 plus n minus 1, you will get here n into n plus 1 by 2. So sum of n natural number of an AP will be n into n plus 1 by 2. तो आप इस तरह देखें कि आप n नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं, n इवन नंबर का सम निकाल सकते हैं और n ऑड नंबर का सम नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर ऑफ एन AP। अभी आपने इवन नंबर का सम निकाला, नेचुरल नंबर का सम निकाला, अब ऑड नंबर का, फर्स्ट ऑड नंबर्स n ऑड नंबर्स ऑफ AP। तो ऑड नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 adding 2 3 5 7 n terms. How much term? n terms. So what will be the first term here? First term यहाँ क्या होगा? A is equal to 1, D is equal to 2. So you can find sum of n term. Yes, n by 2, 2A plus n minus 1 into D. Apply here. n by 2, 2 into A, how much? A is 1. A is 1 plus n minus 1 into 2. So look here, n by 2, 2 plus 2n minus 2. So cancel 2n square upon 2. 2 2 cancel. So Sn is equal to n square. So ऑड नंबर का सम अगर देखिए दो फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाला ऑड नंबर हो तो 2 का स्क्वायर, तो 1 plus 3 4। फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम निकालना है तो 3 स्क्वायर 9, 1 plus 3 plus 5 9। तो बहुत ही बेहतर आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हम ऑड नंबर का सम फर्स्ट एक ऑड नंबर का सम निकालना चाहते हैं तो वो उसका स्क्वायर कर दें, तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। आइए अब हम उसी बेस पे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल फर्स्ट इवन नंबर, अब उसी को हम कैटेगराइज कर लिए, स्पेशलाइज कर लिए कि हमें फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 to 400 डिविजिबल बाय 3। कंडीशनल हो, सारे नहीं लेने हैं, वो डिविजिबल बाय 3। कंडीशनल क्या है? वो 3 से डिविजिबल हो और किसके बीच में हो? 100 to 400। तो जरा हम वो नंबर्स देखें कि कितने नंबर्स हैं पहले कि जो 100 to 400 के बीच में डिविजिबल बाय 3 है। और दूसरी बात यह है स्टार्टिंग कौन सा होगा और लास्ट कौन सा होगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर 100, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 102, पहला डिविजिबल क्या होगा? 102। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या आपने पढ़ा है कि अगर सारे नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से डिविजिबल होता है। कंडीशन है, अगर 101 लेते हैं तो 101 का जो सम है वो क्या है? 2 आएगा, 1 plus 0 plus 1 2, और वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 1013 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो पहला टर्म जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या हो गया 102। और अब उसके बाद वाले टर्म आपको पता है कि 3 ऐड करते जाओ 105 108। अब लास्ट की बात हम करते हैं, 400 है लास्ट। 400 के पहले 399, जरा 399 के भी देखें तो इसको ऐड करें 9 + 3 12, 12 + 9 21, 12 + 9 21 and it is divisible by 3. 399 is divisible by 3. So the last term will be 399. So required AP, जो required AP हो जाएगा 102 प्लस 105 प्लस ये सारे का सम आपको निकालना है प्लस प्लस कहां तक 399। अब आप एक चीज देख सकते हैं यहां पे, आपके पास बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन आपको क्या चीज नहीं पता है, अभी आपको कितने टर्म है ये नहीं पता। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाए देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला SN = n/2 a + n। तो पहला कॉन्सेप्ट आप रिवर्स जाइए, अपने आप को रिवर्स करिए और पहले कॉन्सेप्ट पे आई n टर्म ऑफ AP, उससे नंबर ऑफ टर्म निकालिए। तो A क्या गिवन है 102, D तो आपने बताया डिविजिबल बाई 3 तो 3 हो जाएगा और AN क्या है 399। तो पहले आपको क्या फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म। तो फाइंड आउट A + n - 1 × D। ये आप लोगों को सबको क्लियर है ये फार्मूला। अब देखिए AN की वैल्यू आपके पास पता है 399 एंड A is 102 प्लस n - 1 × 2। इसको इस टाइप में ट्रांसफर कर दीजिए 399 - 102 और ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में n - 1। अब जरा इसमें सब्ट्रैक्ट करिए 9 - 2 क्या होगा 7, 9 - 0 क्या होगा 9 और 3 - 1 क्या होगा 2 डिवाइड बाई n - 1। अब इसको डिवाइड करिए क्या आ जाएगा 3 9 जा 27 और 2 कैरी 2 बच जाएगा और 3 9 जा 27। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो n = 100, 99 + 100। अब आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल गया। अब आप टर्म पता चल गया देन यू कैन फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म कैसे पहला काम आपको देखिए, ये स्पेशल केस था तो स्पेशल केस में डिविजिबल बाई 3 सारे नंबर हमने पता कर लिए कि जो 100 और 400 के बीच में थे वो 100 200 508 ये सारे 399 तक डिविजिबल बाई 3 थे। अब कितने टर्म है ये पता करने के लिए हमने AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ टर्म निकल गया। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, सीधा अप्लाई कर देंगे क्या चीज फार्मूला, सम का फार्मूला। आपके पास नंबर ऑफ टर्म 100 आ गए तो यस n = n/2 A + L। लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन so directly add A + L 100/2 A how much given 102 plus 399 that is 50 2 9 11 9 1 10 3 1 4 1 5। एक बार देख लीजिए 9 and 2 11 carry 1 9 + 1 10 carry 1 3 + 1 4 + 1 5। अब इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत ही आसान 0 5 1 जा 5। तो दिस विल बी द सम ऑफ 100 टर्म। सो आंसर विल बी सम विल बी दिस वन।
So you will get the sum of all these AP, that is answer. So answer you can write here in this bag, answer bag बना दें। ये आपका आंसर बैग है। तो आंसर क्या हुआ, कौन सा नंबर आ गया, सम आ गया 2, 5, 2, 50, 50। बड़ा अच्छा नंबर है, आंसर है 250, 50। बहुत ही अच्छा नंबर आंसर है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन 100 to 400 divisible by 3 will be 250, 50. So in this way you can find the sum of all numbers divisible by 5 also, divisible by 7 also, between 1 to 100, between 100 to 1000, between 200 to 300, इस तरह आप सभी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लुक हियर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू सेम कॉन्सेप्ट। फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 to 300 डिविजिबल बाय 7। भाई सेम कॉन्सेप्ट, आपको पहले नंबर्स निकालने होंगे। वो नंबर्स कौन से होंगे, तो पहले देख लीजिए 100 से कौन से हैं 300। तो आप देखेंगे पहला 100 को 7 से डिविजिबल नहीं है, फर्स्ट नंबर 105 है। कैसे चेक करते हैं, देखो 100 में 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, 10, सॉरी 10 minus 7 3 and 30। अब देखिए, अब यहां कितना होगा, 7 1 जा 7 किया 100। अब कितना और चाहिए, कितना इसमें और चाहिए। देखिए अगर हम 5 कर ले, 7 5 जा 35, तो ये एक्स्ट्रा -5 आ रहा, 5 इसमें और ऐड हो जाता। यहां अगर 5 होता तो कैंसिल हो जाता। तो पहला नंबर 105 आएगा। लास्ट नंबर के लिए देखिए 100 से ज्यादा देखना, 100 से कम नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन 100 to 300 करना, तो 100 से ज्यादा करने के लिए एक ज्यादा बार ले जाएंगे। अब उससे कम लाने के लिए 300 से कम, तो 300 से कम में एक कम करेंगे, तो 307 7 4 जा 28 और 20। अब एक कम 7 2 जा 46, यानी ये 6 एक्स्ट्रा, इसमें से 6 माइनस कर दो तो आपका डिविजिबल बाय 7 आ जाएगा। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी विल बी 105, 112 and 294। Look here, 105, 112, 294। So you can find the number of term here. How you find number of term? First term given, last term given, you can find number of term. Look here, A is 105 and what will be D? Always divisible by 7, 7. AN 294. So look here, you have to find N. You have to find N, so you will find AN, A plus N minus 1 into the AN 294, that is 105 plus n minus 1 into 7. So 294 minus 105 upon 7, that is n minus 1. अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 40 minus 5 9, 8 1 upon 7 n minus 1। अब देखिए 7 2 जा 40 और 7 7 जा, तो n minus 1 27,
दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 28। तो कितने टर्म आ गए जो 7 से डिविजिबल है? कितने टर्म है? 28। तो आपको पहला क्या काम करना है कि वो निकालना है कि कितने टर्म होंगे। अब सम निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, आपने इससे पहले वाले उसमें कर लिया। अब देखिए यस एन निकालना, सम यस एन 28/2। आपने 28 निकाला, 28, इट इज क्लियर। अब 28 के बाद 28/2 a प्लस n, तो a क्या 105 प्लस n 294। लुक हियर 40 5 4 9 9। नाउ मल्टीप्लाई 49 जा 126 कैरी 12। 49 या 126 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 26 प्लस 12 38, तो 138 कैरी 13 और 14 3 या 42 और 42 प्लस 13 55। So again you can multiply 49 ja 126 6 carry 12 49 ja 126 plus 12 138 carry 13 और 14 3 ja 42 and plus 13 55. So you will get Sn is equal to 5 5. So answer that you can get here, answer 5586. So this will be the sum of all term between 100 to 300 divisible by कितने divisible by 7. Okay, I hope it is clear to all. So next video we will discuss and next example. Okay, good. Okay, thank you to everyone. We will discuss in next video another topic. Okay, bye.